This is the external force convection, and in this lecture we will cover the energy equation over the flat plate. The second one is the Poisson solution of energy equation. These two topics we will cover in this lecture, and definitely energy equation, that means here we are talk about the thermal boundary layer. In last lecture we will discuss about the concept of thermal boundary layer, concept of Nusselt number, concept of Prandtl number, and concept of film temperature over the surface. Clear? So now let us take one by one. So first of all, I am considered the energy equation over flat plate for laminar flow. Clear? So basically what we will trying to do, we will derive an equation over the surface for energy equation, and definitely this proof we will consider a laminar flow. Clear? So what exactly it is, let's discuss about this. In this one, what we will do, we consider a flat plate. Clear? This is the flat plate which is insulated at either side, because we want to consider the heat transfer only in that direction. This is the heat transfer. Clear? So there is no heat transfer in that direction. That means here we consider the no heat transfer because we are considered the insulation at that side. Clear? And definitely there is a free stream flow with the velocity capital U, and free stream temperature is Tf over the surface. That's why there is a thermal boundary layer is formed, and similarly the hydrodynamic boundary layer is formed. Here we consider the hydrodynamic boundary layer HBl, HBl and TBl, both are superimposing to each other. That means we will consider a air. Clear? Any gas. Clear? Last class मैंने आपको बताया था this will happen for Prandtl number is equal to 1. Clear? If I am consider Prandtl number 1, that means the hydrodynamic boundary layer and thermal boundary layer both are superimposing to each other. Clear? So that this arena जो ये आपको एक curvature दिख रहा है, this curvature is known as the thermal boundary layer, as well as we can say if Prandtl number is equal to 1, this one is HBl. That means यहाँ जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो गैस कंसीडर कर रहे हैं. दैट मीन्स एनी एयर इज फ्लोइंग ओवर द सरफेस. क्लियर? नाउ द थिंग इज, if suppose the surface temperature is Ts, which is uniform throughout the surface, and this is the Tf, here I am considered that is Tf is greater than the surface temperature. Clear? The Tf is greater than the surface temperature. That means hot air is flowing over a cool plate. So this particular portion is known as the velocity. This is the velocity profile. This is called the velocity profile. Velocity. Just a minute. So just a minute. Okay, so what it is, this one is this called the velocity profile. This is the velocity profile. Clear? This is the velocity profile. And what is this? This one is the temperature profile. This one is the temperature profile. Clear? This is temperature profile. Clear? So basically this particular portion 0AB, this is the velocity profile for laminar flow. ध्यान रखिएगा, हम इसमें केवल और केवल लैमिनार फ्लो कंसीडर कर रहे हैं. तो लैमिनार फ्लो में मैंने बताया था आपको कि किस तरह से वेलोसिटी प्रोफाइल बनाई जाती है, और ये जो केस है वो केस मैं कंसीडर कर रहा हूँ, दैट इज Tf इज ग्रेटर दैन सरफेस टेम्परेचर. Ts इज ग्रेटर दैन सरफेस टेम्परेचर. तो आपको याद होगा जो लास्ट क्लास में मैंने किया था, उसमें आपको टेम्परेचर प्रोफाइल आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर है वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ आएंगे टेम्परेचर आपका रिड्यूस होता जाएगा. सो दिस प्रोफाइल इज लुक लाइक दिस. सो वी कैन से ऑल्सो here this dimensionless quantity theta must be equal to, this one is T xy minus this one is Ts, this is Ts, and this divided by this one is Tf
दिस इज TF माइनस TS। क्लियर, ये आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अगर आप इसका स्लोप कंसीडर करेंगे तो दिस स्लोप इज पॉजिटिव। क्लियर, दिस slope is positive, so this thing is clear by this diagram. So here I am considered, let us consider a flat plate over which a laminar flow of a hot fluid over a cool plate. Plate width is unit, that means जो इसकी width हम consider कर रहे हैं वो unit width consider कर रहे हैं, that means we consider the heat flow only in the 2 dimension. The z direction is considered as simple, this z direction is considered as 1. So plate width is unit and the direction of heat flow from the fluid to the plate, definitely the heat transfer is taking place in that direction. The reason is very simple, because TF is greater than TS. Let us assume steady state. So whatever the flow is flowing over the surface, we will consider this flow should be steady state. Clear? And incompressible fluid, that means density is constant throughout the surface from 0 to L. The L is the length of that plate. Fluid properties are uniform at film temperature. बेसिकली मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्म टेम्परेचर आपको बताया था. फिल्म टेम्परेचर इज T film. If I am writing the film temperature, so this one is considered as the T film, this one is T film, this one is T film. This should be equal to just a minute. So this one is T film, this is T film, this is T film is equal to, if you recall the previous lecture, this one is the surface temperature plus the free stream temperature TF, and this divided by 2. So at this film temperature, if we consider the properties of that fluid, this one the properties, basic properties is the viscosity, density, which is definitely constant, this is conductivity of liquid, and definitely the specific heat. Clear? Specific heat at constant pressure. So definitely these properties at a film temperature should be uniform. और मैंने इसका रीज़न आपको बताया था कि आप अगर डिफरेंट लेयर्स पर देखेंगे तो डिफरेंट टेम्परेचर्स होंगे, हर एक लेयर की प्रॉपर्टी अलग होगी. तो उसके लिए चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस पूरी बॉडी को एक बॉडी मान रहे हैं, और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में एक एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट किया और उस एवरेज टेम्परेचर पर हम प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो एवरेज टेम्परेचर हमारा फिल्म टेम्परेचर कहलाता है ओवर द सरफेस में. और दूसरी चीज़ जो एजम्पशन हम फॉलो करेंगे इस एनर्जी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, वो एजम्पशन है दैट इज बॉडी फोर्स. जो इसके ऊपर बॉडी फोर्सेस लग रहे हैं वो बॉडी फोर्सेस, दैट इज अ प्रेशर फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ. डेफिनेटली अगर प्रेशर फोर्स की बात करेंगे तो इधर P लगेगा और इधर इसका चेंज ऑफ प्रेशर फोर्स लगेगा. तो चेंज ऑफ प्रेशर फोर्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द विस्कस फोर्स. सो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर ये कंसीडर कर रहा हूँ तो विस्कस हीटिंग, अगर मैं बात करूँगा विस्कस हीटिंग एंड कंडक्शन, क्लियर, विस्कस हीटिंग जो हो रही है वो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं. दूसरा, कंडक्शन इन फ्लो डायरेक्शन इज नेग्लिजिबल. फ्लो डायरेक्शन कौन सी है? ये, दैट मीन्स कंडक्शन इन एक्स डायरेक्शन, कंडक्शन इन एक्स डायरेक्शन इज कंसीडर्ड जीरो. कंडक्शन इज कंसीडर्ड ओनली इन वाई डायरेक्शन. क्लियर, हम केवल कंडक्शन वाई डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, एक्स डायरेक्शन में कंसीडर नहीं करेंगे. ये हमारा एजम्पशन है. डेफिनेटली अगर मैं इसको फिजिकली मैं बात करूं कि क्यों कंडक्शन हम एक्स डायरेक्शन में नेग्लिजिबल कर रहे हैं, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो अगर फ्लो का बिहेवियर देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है यानी u वेलोसिटी है, विच इज़ मच मोर एज कंपेयर टू द v वेलोसिटी. दैट्स वाई कि v वेलोसिटी अगर आपकी कम है यानी y डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर आपकी कम है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स को सफिशिएंट टाइम मिलता है एक दूसरे से हीट को ट्रांसफ़र करने में. इसलिए कंडक्टिविटी का इफेक्ट वाई डायरेक्शन में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्स डायरेक्शन, और उसकी वजह से मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है कंडक्शन इन फ्लो डायरेक्शन इज नेग्लिजिबल. क्लियर? सो ये कुछ एजम्पशंस थे, और इन एजम्पशंस के बाद हम फर्दर आगे मूव करते हैं. और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने क्या किया कि ये जो थर्मल बाउंड्री लेयर और हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थी, इसके अंदर हमने एक कंट्रोल वॉल्यूम एज्यूम किया है, और वो कंट्रोल वॉल्यूम dx और dy, और उसकी विड्थ जो है वो 1 है. इस कंट्रोल वॉल्यूम को हमने लैमिनार फ्लो के लिए एज्यूम किया है. क्लियर?
अब इस कंट्रोल वॉल्यूम में एट अ स्टडी स्टेट, ध्यान रखिएगा, एट अ स्टडी स्टेट अगर मैं एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करता हूं तो मैं बोलूंगा, थर्मोडायनेमिक्स से आपने ये चीज पढ़ी होगी, दैट इज डेल्टा ई सिस्टम, दैट इज डेल्टा ई सिस्टम इट शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी जो इस सिस्टम है, जो कंट्रोल वॉल्यूम है, इसका टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू जीरो होगी, अदरवाइज ये डेल ई ओवर डेल टी होता अगर ये स्टडी स्टेट ना होता तो, लेकिन चूंकि हमने स्टडी स्टेट रखा है इसलिए ये डेल ई सिस्टम शुड बी इक्वल टू जीरो. Now this del E system has a different type of energies. One is a heat energy, other is a mass energy, other is a work energy. Clear? तो देखिए यहाँ पर अगर आप या मैं नेक्स्ट स्लाइड ही मूव करता हूँ. If we move further for the next slide. So in this one, in this next slide, if you observe this one is delta E system, delta E heat plus delta E mass plus delta E work. देखिए मैंने पहले ही आपको ये लिखा था कि विस्कस, यहाँ पर दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक प्रेशर फोर्स जिसको हम लोग बॉडी फोर्स बोल रहे हैं, दूसरा विस्कस फोर्स. तो इन दोनों फोर्स को अगर मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा. तो मैंने ऑलरेडी बोला है आपको कि जो इफेक्ट ऑफ बॉडी फोर्स है और विस्कस हीट है, ये दोनों हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर डेल ई वर्क जो है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे. मैंने यहाँ पर लिखा ही हुआ है, एज पर आवर अजम्पशन डेल ई वर्क इज जीरो एज कंपेयर टू चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ हीट एंड मास. केवल यहाँ पर हीट और मास का इफेक्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू चेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू द वर्क, सो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं. नाउ फर्स्ट वी कंसीडर चेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू मास. मैं एक एक करके कंसीडर कर रहा हूँ, पहले मैं मास के लिए कंसीडर कर रहा हूँ. तो मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ कि आपने जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है अबाउट द कॉन्सेप्ट of that is internal energy. So what is exactly, so for control volume at steady state, अगर मैं control volume steady state की बात कर रहा हूँ तो internal energy is equal to the summation of that is intermolecular energy. What is H? H को क्या कहते हैं? H is the intermolecular energy plus flow work. याद होगा आपको, this is the flow work. Clear? So E is equal to, and this particular U plus PV is known as the enthalpy. Clear? U plus PV is known as the enthalpy plus kinetic energy plus potential energy. आपने ये ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है. सो अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो ये कंट्रोल वॉल्यूम अगर आप ध्यान से देखो कि इसका जो एरिया है, मेरा जो कर्सर आप देख रहे हैं, इस ये एक्स डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक और वाई डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक, ये यूनिफॉर्म है फ्रॉम हियर टू हियर. क्लियर? ये वैल्यू यूनिफॉर्म हम रख रहे हैं, इसलिए चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. दूसरा, चूंकि ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है, इस कंट्रोल वॉल्यूम में जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि ये कंट्रोल वॉल्यूम किसी बहुत हाइट पर नहीं ले जाया गया है, इसलिए चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल. दैट मीन्स चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को भी अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो हम ये कह सकते हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ द मॉलिक्यूल इज समेशन ऑफ intermolecular energy plus flow work. Here the enthalpy is the combustion of intermolecular energy and flow work. The kinetic energy and potential energy is negligible due to the reason that within control volume change of velocity and change of position is very small as compared to enthalpy. So E is equal to H. ये जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, which is calculated by specific heat and temperature mass flow rate. तो आपको एक चीज़ ये बेसिक कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट का. स्पेसिफिक हीट का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, दिस कॉल्ड द DH अपॉन दिस इज डेल टी. दिस इज द DH अपॉन डेल टी पर यूनिट मास अगर आप कैलकुलेट करते हो तो DH इज इक्वल टू C इंटू डेल टी. क्लियर? तो ये आप सब बेसिक कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ई मास को क्या बोलेंगे? ये एक्चुअल में DH ही है. ई मास इज दैट इज मास फ्लो रेट, क्योंकि मैं यहाँ पर यूनिट निकाल रहा था, मैं लिख रहा हूँ मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर. व्हाई? बिकॉज वी विल कंसीडर फॉर द गैस. क्लियर? हियर वी आर कंसीडरिंग द Prandtl number should be equal to 1. That's why Cp and Cv both are not same. So here I am considering the specific heat at a constant pressure because we are neglecting the effect of pressure. Clear? So pressure should be constant at this phase to this phase. Here, so this one is mass flow rate Cp into dt. So in a x direction, what is the mass flow rate? So this is the x direction. Clear? What is the mass flow rate in that direction?
because we are considering the incompressible fluid. So due to this incompressible fluid, what happened, the density should be constant. So this is the density. So here this is the density. The retarded velocity is u. I'm so sorry, this is not a density. This, sorry for that. Just a minute. The density is rho. This one is rho. Velocity, retarded velocity u, and this distance is dy, area of cross section dy into 1. Clear? Rho av. What it is? This is the rho av. So we can write rho u dy easily, because in the z direction it is considered as the unit weight. So Cp into T. So this is the E mass in. What is the mass in the x direction? What is the out? So this one is, if suppose this is the Ex. Say for example, this one is Ex. So due to the dx distance, how much energy is changed? This one is Ex plus dx. Ex plus dx. So you can write the E mass out is equal to Ex plus dx is E in plus del E in dx into del x into dx. Clear? So how much change? That is inflow minus outflow. How much change? Because energy is a scalar quantity. So we can write here, that is the E in minus E out in x direction. This is E in minus E out. E out. E out. Here E in minus E out. So you put the E out value. So E in and E in will be cancelled out, and you get the minus del over del x, E in del x. So you just put the E in value in that expression. You get density is a constant because it's an incompressible fluid. Cp is also constant term, so rho Cp comes outside. But velocity is not a constant value, because velocity here I am consider velocity is a function of, that is x and y, and similarly temperature is also a function of x and y. Clear? Temperature is also a function of x and y. So definitely u and t both are differentiable with respect to x, so you cannot take outside. So this is ut, and this one is dy into dx. Simple. So this is minus rho Cp. So it's a simple multiplication, fx into gx. So you can elaborate by differential formula. So this is the simple del by del x, fx into gx. So you can say u del t over del x plus t del u over del x dy dx. So you can write this expression after elaboration of fx into gx differentiation. Similarly, if you talk about similar fashion in the y direction, so this one is Ey in, this one is Ey in, and this one is E out. This one is E out. This is E out. This is E out. See, clear? So E in is E in minus E out. Similar, मैं similar fashion में सीधे यहाँ पर लिख रहा हूँ. This is E in minus E out. So this comes minus del over del y. Similarly, अगर आप यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, what is the E in? E in y direction. ये कितना होगा? So you can take by mass flow rate. So what is the mass flow rate in y direction? Density multiplied by. देखिए y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या कंसीडर करी जाएगी? दिस फ्रैक्शन इज v. क्लियर? और एरिया आप देखिए, एरिया इज dy into 1. So this one is dy into 1. This is the mass flow rate. Clear? This is the mass flow rate, and this is the Cp into the temperature. अब आप कहेंगे कि सर ये एक्चुअल में तो होना चाहिए कि mc dt. याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि जब भी आप रेट फॉर्म निकालते हैं तो या तो आप चेंज ऑफ दैट इज मास फ्लो रेट कंसीडर करें, या आप चेंज इन द टेम्परेचर कंसीडर करें, या टेम्परेचर का रेट कंसीडर करें. क्लियर? तो हमने टेम्परेचर को ना चेंज करके हमने मास फ्लो रेट को चेंज किया. तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों एक साथ कभी चेंज मत करिएगा. या तो आप मास फ्लो रेट को चेंज करिए या केवल टेम्परेचर का रेट आप कंसीडर करिए. क्लियर? तो इसलिए मैंने यहाँ पर मास फ्लो रेट कंसीडर किया, तो टेम्परेचर हमारा वही कांस्टेंट रहेगा इन वाई डायरेक्शन. तो ई इन ई आउट वाई कितना हो जाएगा? अगेन दिस इज ई इन प्लस डेल ई इन ओवर डेल वाई इंटू डी वाई. क्लियर? ये हो जाएगा. तो आप अगर इसमें चेंज निकालोगे तो ई इन माइनस ई आउट करोगे तो दिस कम्स लाइक डेल ओवर डेल वाई ई इन इंटू डी वाई. तो ई इन की वैल्यू मैंने पुट की है रो वी डी एक्स.
sorry, this distance is dx. I'm so sorry about this. This is the dx distance. This particular distance is dx. Clear? Because this is the dy distance. So this is the rho v dx cp into t into dy. Clear? तो इसमें भी वही डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट टर्म है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया. तो दिस इज द डेल ओवर डेल वाई वी टी डी वी इंटू डी एक्स. वी इज वेरिएबल इन द वाई डायरेक्शन, यही चीज़ मैंने लिखा है. यू का जो वाई का फंक्शन है उसको हम वी लिखते हैं. वी को मालूम होना चाहिए आपको. व्हाट इज वी इज इक्वल टू दिस इज डी वाई ओवर डी टी. क्लियर? ये आपको पता होगा फ्लूइड मैकेनिक्स से. क्लियर? तो मैं यहाँ पर इसको इलाबोरेट कर रहा हूँ एफ एक्स इंटू जी एक्स में. तो दिस इज माइनस रो सी पी v del t over del y plus t del v over del y dy into dx. सो सिमिलरली ये x में u में इक्वेशन थी और यहाँ पर v में इक्वेशन है. अब इस एक्सप्रेशन को फर्दर अगर हम इलाबोरेट करेंगे तो क्या आएगा? अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर इलाबोरेट करूँगा तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी. नाउ एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. एवरीबडी नो दिस, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो स्केलर क्वांटिटी का बेनिफिट ये है कि आप x और y और z डायरेक्शन को एक साथ अलजेब्रिक समीशन कर सकते हैं. तो क्या चेंज आया मास का x और y डायरेक्शन में? मैंने दोनों को सम अप कर दिया. तो याद होगा माइनस रो सी पी यू डेल टी ओवर डेल एक्स प्लस टी डेल यू ओवर डेल एक्स आया था x डायरेक्शन में. y डायरेक्शन में माइनस रो सी पी वी डेल टी ओवर डेल वाई प्लस टी डेल वी ओवर डेल वाई डी वाई डी एक्स आया था. ये चीज़ आई थी. तो अगर दोनों को सम अप करेंगे तो माइनस रो सी पी कॉमन हो गया. इस इक्वेशन को यू डेल टी ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल टी ओवर डेल वाई प्लस टी डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई डी वाई इंटू डी एक्स लिख सकते हैं. अब चूंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं स्टडी स्टेट कंसीडर कर रहा हूँ, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पता होना चाहिए कि जो स्टडी स्टेट होता है उस स्टडी स्टेट में डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए. ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं. तो अगर मैं स्टडी स्टेट अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं ये बोलूँगा दिस पर्टिकुलर टर्म इज कंसीडर्ड एज 0. सो व्हाट इज द चेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू मास? दिस वन इज माइनस रो सी पी यू डेल टी ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल टी ओवर डेल वाई डी एक्स इंटू डी वाई. क्लियर? तो ये हो गया आपका चेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू मास. अब दूसरा कैलकुलेट करते हैं चेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीट इन एक्स डायरेक्शन. क्लियर? तो एक्स डायरेक्शन में हम अगर कंसीडर करते हैं, हालांकि हमने ऑलरेडी माना है कि एक्स डायरेक्शन में नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी मैं दोनों टर्म आपको लिख के दिखाता हूँ. एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन, तो जो एनर्जी यहाँ पर कंसीडर की जा रही है एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन इस पर्टिकुलर जो फ्लूइड के लिए है, चूँकि हमने स्टडी स्टेट माना है, तो अगर मैं कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड के मान रहा हूँ तो यहाँ पर जो एक्स डायरेक्शन में एक मालिक्यूल अपनी एनर्जी दूसरे मालिक्यूल को जो ट्रांसफ़र कर रहा है ड्यू टू अभी यहाँ पर कोई भी सरफेस के साथ कांटेक्ट नहीं है, फ्लूइड का फ्लूइड के पार्टिकल के साथ में कांटेक्ट है. तो यहाँ पर हम इसको कंडक्शन एज्यूम कर रहे हैं और कंडक्शन में हम फोरियर लॉ अप्लाई कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमने स्टडी स्टेट अप्लाई किया. तो फोरियर लॉ से अगर आप देखोगे व्हाट इज द एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन, तो एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दिस इज माइनस के, जो कि यूनिफॉर्म है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन दोनों में. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज dy. क्लियर? इनटू 1. एंड टेम्परेचर डिफरेंस इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज डेल टी ओवर डेल एक्स. एंड व्हाट इज द ई आउट एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? ई इन प्लस डेल ओवर डेल एक्स ई इन डेल एक्स डी एक्स. क्लियर? तो चेंज कितना हो जाएगा? ई इन माइनस ई आउट अगर आप करोगे तो दिस इज द माइनस डेल ओवर डेल एक्स ई इन, मैंने वैल्यू पुट कर दी, माइनस के डी वाई डेल टी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स. सो के इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस माइनस टेक आउटसाइड, दोनों माइनस माइनस साइन को हम बाहर निकाल लेंगे तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए. तो कंडक्टिविटी के एंड दिस डी वाई कम्स दिस साइड and this is the del 2 t over del x square dx dy. This is the conductive heat in x direction. Clear? Rather say change of conductive heat या heat accumulated in x direction should be k del 2 t over del x square dx into dy. Similarly y डायरेक्शन में देखेंगे, क्यों मैं सिमिलरली लिख रहा हूँ? क्योंकि अगर आप ये एलिमेंट देखेंगे उस एलिमेंट में y डायरेक्शन में भी अगर आप देखें जो इनलेट का आपका एरिया है वही आपका आउटलेट का एरिया है. एरिया में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सिमिलरली फैशन में लिख सकते हैं कि चेंज ऑफ या हीट एक्यूमुलेटेड इन वाई डायरेक्शन शुड बी के डेल टू टी ओवर डेल वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई. अगेन टोटल कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमारा स्केलर क्वांटिटी है. तो चेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन दोनों को
तो मैं अगर दोनों को कंबाइन करूंगा तो मैं लिखूंगा k del 2t over del x स्क्वायर प्लस del 2t over del y स्क्वायर dx into dy। क्लियर? अब मैं ये इक्वेशन पूरी जो मैंने कैलकुलेट की है, इस इक्वेशन को हम लोग एक साथ लिखते हैं। और वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन थी आपकी, दिस वन इज E हीट रादर मैं इसको लिखूंगा डेल, क्यों? क्योंकि मैं चेंज कंसीडर कर रहा हूं। डेल प्लस डेल E दैट इज हीट, और सेकेंड वन मास, MASS, दिस इज मास। फॉर स्टडी स्टेट दिस शुड बी इक्वल टू 0। आपका वर्क भी होगा, लेकिन वर्क को मैंने नेग्लेक्ट कर रखा है। E हीट प्लस डेल E मास शुड बी इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो डेल E हीट था उसकी वैल्यू रख दी के, ये पर्टिकुलर टर्म किसका है? डेल E हीट का है। डेल E मास का कितना टर्म है? दिस पर्टिकुलर टर्म फॉर द डेल E मास। क्लियर? डेल E मास का ये पर्टिकुलर टर्म है। क्लियर? जस्ट अ मिनट। डेल E मास का ये पर्टिकुलर, ओके। तो फर्दर अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए, मैंने आपको लिखा था दिस वन इज डेल E, दिस इज डेल E हीट, डेल E हीट प्लस डेल E mass, del E mass should be equal to 0। क्लियर? एट ए स्टडी स्टेट। क्लियर? तो डेल E हीट आपने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया, तो डेल E हीट कितना आ गया? दिस इज k del 2t over del x स्क्वायर प्लस del 2t over del y स्क्वायर dx dy माइनस रो Cp। आपका डेल E मास कितना हो गया? माइनस रो Cp u del t over del x प्लस v del t over del y dx dy शुड बी इक्वल टू 0। सो सिंपल आप इसको रीशफल कर लीजिए, तो यहाँ से आप कह सकते हैं dx dy एंड dx dy विल बी कैंसिल आउट। तो मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, दिस इज u del t over del x प्लस v del t over del y डिवाइडेड बाई k बाई रो Cp del 2t over del y स्क्वायर। मैंने del 2t over del y स्क्वायर क्यों लिखा? मैंने पहले आपसे कहा था कि आपका del 2t over del x स्क्वायर, del 2t over del x स्क्वायर इज कंसीडर्ड एज नेग्लिजिबल इन कंडक्शन इन x डायरेक्शन। नेग्लिजिबल मैंने एज्यूम किया था, तो मैंने del 2t over del x स्क्वायर को अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। आपको k बाई रो Cp आप पहले भी जानते हैं, k बाई रो Cp क्या है? अल्फा। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो मैं अभी रेड कलर के बॉक्स में इसको बंद कर रहा हूँ, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नोन एज द एनर्जी इक्वेशन। और अगर आप इसको कंपेयर करें जो आपका मोमेंटम इक्वेशन थी, तो मोमेंटम इक्वेशन क्या थी? u del u ओवर del x, u del u ओवर del x प्लस v del u ओवर del y should be equal to, this is nu del 2t del 2u over del y square, del y square. Now if you compare this momentum equation and this energy equation, this called the energy equation. So in this energy equation, this del t over del x or del t over del y, these are the energy terms, and here the del u over del x or del u over del y are the force term. That's why this called the momentum equation and this called the energy equation. So by this way you can prove the energy equation, which is very important proof, and definitely this should be asked definitely in your exam also. So now let us discuss about further discussion of solution of this equation. So let us move further for next slide. This is the Poisson solution. Clear? This is the Poisson solution of the energy equation. जो आपने एनर्जी इक्वेशन आपने डेराइव की है, उस एनर्जी इक्वेशन को अब आपको सॉल्व करना है।
वो जो एनर्जी इक्वेशन आपने ड्राइव की उसको सॉल्व करना है। और वो कैसे करेंगे, देखिए आपको ये एनर्जी इक्वेशन, ये जो आपको दिख रही है, दिस वन इज द एनर्जी इक्वेशन, दिस इज u del t over del x plus v del t over del y is equal to alpha del 2 t over del y square. Similar fashion में पोहेल्सन एक्चुअली, दिस इज द पोहेल्सन ब्लेसियस सोल्यूशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन। पोहेल्सन भी साइंटिस्ट है, पोहेल्सन ने ब्लेसियस के सोल्यूशन को एक्सटेंड किया। उसने भी यही कहा कि यहाँ पर del t over del x और del t over del y टेम्परेचर दो वेरिएबल में है, और एक ये जो पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन है, क्यों ना इस पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट कर दें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में विद सम फंक्शन, जो फंक्शन एक कॉमन फंक्शन हो। ऐसा उसने क्यों कहा पोहेल्सन ने ये चीज़ देखी कि जो थर्मल बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन है और जो हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन है, दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं। और लैमिनार फ्लो में अगर आप देखोगे तो लैमिनार फ्लो में जो वेलोसिटी की प्रोफाइल है एग्जैक्टली वैसी ही प्रोफाइल आपकी टेम्परेचर प्रोफाइल भी बनती है, यानी कहीं ना कहीं पर दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए, हियर वी कंसीडर एनालॉगस बिटवीन द हाइड्रोडायनामिक एंड थर्मल बाउंड्री लेयर, विच मीन्स दैट डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी मैंने स्टार्टिंग थर्मल बाउंड्री लेयर में आपको बताया था। क्यों यहाँ पर भी सेम, चूंकि हमने जो डिराइव किया है वो ये डिराइव किया था TF इज ग्रेटर दैन TS। ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसके प्रूफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। अगर आप TS इज ग्रेटर देन TF लेते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग थ्योरी केवल डायरेक्शन के बदलेगी, बाकी और कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इफ TF इज ग्रेटर देन TF इज ग्रेटर देन TS, सो दिस थीटा, जो मैंने थीटा वैल्यू आपको याद होगा लिखी थी, दिस इज TXY माइनस TS अपॉन TF माइनस TS इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ, याद होगा आपको जब मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल बोला था तो आपको ये मैंने बोला था स्मॉल u अपॉन कैपिटल U, दिस वन इज अ फंक्शन ऑफ, दिस इज द फंक्शन ऑफ ईटा। क्लियर, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी। तो लैमिनार फ्लो में आपने देखा कि आप स्मॉल u अपॉन कैपिटल U की प्रोफाइल और जो थीटा की प्रोफाइल है, बोथ आर एनालॉगस टू ईच अदर, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ ईटा। क्लियर, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ ईटा, इस तरह से हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर ईटा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ दोबारा। ईटा आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रोक and Prandtl approximation. Eta is equal to y under root u upon nu x. Clear, rather say this is the approximate. Clear, under root approximate y under root u upon nu x. इसी तरह से आपने जो स्ट्रीम फंक्शन था साई, याद होगा आपको, साई मैंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, आप प्रीवियस जो लेक्चर है उस पर जाके इसको देख सकते हैं। सो साई इज इक्वल टू अंडर रूट न्यू एक्स यू एंड फंक्शन ऑफ ईटा। कैसे आता है ये मैं पहले बता चुका हूँ, अब ये डिस्कस करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले की है ब्लेसियस में, उन्हीं का मैं रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ। U की वैल्यू भी मैंने वहाँ पर निकाली थी और V की वैल्यू भी मैंने वहाँ पर निकाली थी। तो ये मैंने वहाँ कहाँ से यूज़ किया, ब्लेसियस सोल्यूशन से, ब्लेसियस सोल्यूशन रिजल्ट है ये, ब्लेसियस सोल्यूशन रिजल्ट। क्लियर, तो ये ब्लेसियस सोल्यूशन के रिजल्ट हैं, इसलिए इसको पोहेल्सन ब्लेसियस सोल्यूशन बोलते हैं। तो अब पोहेल्सन की थ्योरी उन्होंने अप्लाई की, तो उसने ये लिखा कि अगर स्मॉल u अपॉन कैपिटल U फंक्शन ऑफ ईटा है तो थीटा भी फंक्शन ऑफ ईटा होगा, एंड थीटा इज इक्वल टू TXY माइनस TS अपॉन TF माइनस TS। तो अगर मैं यहाँ पर डेल टी ओवर डेल एक्स फाइंड आउट करूँ तो डेल थीटा ओवर डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई TF माइनस TS हो जाएगा। इसी तरह से डेल टी ओवर डेल वाई डेल थीटा अपॉन डेल वाई TF माइनस TS हो जाएगा। आसान है इसको समझना। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डेल टी ओवर डेल एक्स को रिप्लेस करके मैं डेल थीटा ओवर डेल एक्स या डेल थीटा ओवर डेल वाई में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज u टाइम्स TF माइनस TS डेल थीटा ओवर डेल एक्स प्लस v टाइम्स डेल टी ओवर डेल वाई की जगह मैंने लिखा TF माइनस TS डेल थीटा ओवर डेल वाई इज इक्वल टू अल्फा डेल टू टी ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल टू टी ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू थीटा ओवर डेल वाई स्क्वायर TF माइनस TS, वही चीज मैंने लिख दी, TF minus TF, TF minus TF, TF minus TS will be cancelled out. So what you get, u del theta over del x plus v del theta over del y. This should be equal to alpha del 2 theta over del y square. Del 2 theta over del y square. Simple है, clear? अब देखिए इसके आगे हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं. Let us move further.
Okay, so just see in this slide. Now del theta over del x, del theta over del x को चेन रूल से हम del theta over del eta, आप देखिए वैसा ही मैं सब काम कर रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ, आपने देखा जो एक्सप्रेशन लिखी गई वो ये हो गई, सॉरी ये जो एक्सप्रेशन लिखी जा रही है वो ये हो गई, u del theta over del x, del theta over del x plus v del theta over del y. This should be equal to alpha del 2 theta over del y square. एनर्जी इक्वेशन को मैंने थीटा में इस तरह से चेंज किया. तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आपको थीटा को, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ ईटा, थीटा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ईटा, ये मैंने आपको पहले बता दिया. और ब्लेसियस सोल्यूशन से u की वैल्यू, v की वैल्यू और ईटा की वैल्यू, ये सारी वैल्यू मैंने ब्लेसियस से यूज़ कर ली. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेल थीटा ओवर डेल एक्स को, क्या मैं डेल थीटा ओवर डेल ईटा इंटू डेल ईटा ओवर डेल एक्स भी लिख सकता हूँ, क्यों, चेन रूल लगाया मैंने. इसी तरह से डेल थीटा ओवर डेल वाई को डेल थीटा ओवर डेल ईटा इंटू डेल ईटा ओवर डेल वाई लिख सकता हूँ, चेन रूल अप्लाई किया. क्लियर. तो अब यहाँ पर देखिए डेल थीटा ओवर डेल ईटा इज इक्वल टू एफ डैश ईटा हो जाएगा, और ईटा इज इक्वल टू मैंने पहले भी लिखा है y अंडर रूट u अपॉन न्यू एक्स, u अपॉन न्यू एक्स. क्लियर, u अपॉन न्यू एक्स. सो डेल ईटा ओवर डेल एक्स और डेल ईटा ओवर डेल वाई फाइंड आउट करना आसान है. तो यहाँ से आप डेल थीटा ओवर डेल एक्स और डेल थीटा ओवर डेल वाई आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैं बहुत इसमें नहीं जा रहा हूँ कि आप कैसे इसमें कर रहे हैं. डेल टी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी एस 2x लाइक दिस. तो ये सारे स्टेप्स आप खुद करके देख सकते हैं, मैं इन स्टेप्स पर नहीं जा रहा हूँ. तो ये स्टेप्स जब आप करते हैं, क्लियर, और इन स्टेप्स में ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करते हैं, यानी डेल थीटा ओवर डेल एक्स को, डेल थीटा ओवर डेल वाई को, डेल टू थीटा ओवर डेल वाई स्क्वायर को, u और v को अगर आप रिप्लेस करेंगे तो सारे वैल्यू पुट करने पर और रिप्लेस करने पर आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगी वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से मिलेगी. मैं वो एक्सप्रेशन पढ़ रहा हूँ. कैपिटल U f dash eta multiplied by tf minus ts eta del theta over del eta upon 2x plus half under root u nu upon x in bracket, this one is eta f dash eta minus f eta into in bracket, this is minus tf minus ts del theta over del eta under root u upon nu square. This should be equal to minus tf minus ts del 2 theta over del eta square u upon nu x into alpha. So you can put all those values accordingly. Clear? और इसको सॉल्व करने पर जो इक्वेशन आती है, दिस इक्वेशन इज रिटन del 2 theta over del eta square plus Prandtl number by 2 function of eta del theta over del eta is equal to 0. Now this expression, this particular expression जो साइड में यहाँ पर लिखी हुई है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखिए, मैंने एक ही ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक ही वेरिएबल ईटा के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो गई. क्लियर. तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 del 2 theta over del eta square plus Prandtl number fn del theta over del eta is equal to 0. अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप को याद हो जो मोमेंटम इक्वेशन में हमने कन्वर्ट किया था, मोमेंटम इक्वेशन में जो कन्वर्ट हुआ था वो ये था, 2 del क्यूब f अपॉन del eta क्यूब प्लस f eta del स्क्वायर f अपॉन del eta स्क्वायर, इस तरह से कन्वर्ट किया गया था. तो अगर इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को देखें तो क्या इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है? यस, ऑफ कोर्स इन दोनों में सिमिलरिटी है. कैसे सिमिलरिटी है? देखिए ये del 2 थीटा ओवर del eta स्क्वायर है, यानी थीटा शुड बी, क्या मैं अगर लिख दूं इसको, del f ओवर del eta, थीटा इज del f ओवर del eta. क्लियर. तो अगर मैं थीटा को यहाँ पर del f ओवर del eta रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स del क्यूब f ओवर del eta क्यूब प्लस Prandtl number function of eta del square f over del eta square. This should be equal to 0. Now if you compare
this equation and this equation. So both equation is differ only by the Prandtl number. So if let us say this is the equation number 1, मैं इसको equation number 1 नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको equation number 1 ले रहा हूँ. इन इक्वेशन 1 एंड 2, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो, और अगर प्रांटल नंबर 1, हालांकि मैंने ऑलरेडी लिया है प्रांटल नंबर 1, तो अगर प्रांटल नंबर 1 है तो थीटा शुड बी डेल एफ, यानी वैसा वर्सा चीज है. अगर मैं थीटा को डेल एफ और डेल ईटा लिख दूं और प्रांटल नंबर को 1 लिख दूं, तो इक्वेशन 1 और 2 बोथ आर सेम. दैट मीन्स कि उनकी बाउंड्री कंडीशंस भी सेम होनी चाहिए. यानी एट ईटा इज इक्वल टू 0, ईटा इज इक्वल टू 0, थीटा क्या था, याद होगा आपको, थीटा इज इक्वल टू टी माइनस टी एस अपॉन दिस इज टी एफ माइनस टी एस. क्लियर, टी एफ माइनस टी एस. तो एट ईटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ईटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू 0. So at y is equal to 0, t is equal to ts. So t is equal to ts means theta is equal to 0. Clear? At eta is equal to del, that means at y is equal to del, क्या होगा वहाँ पर, t is equal to tf. So tf minus ts upon tf minus ts, so theta is equal to 1. Clear? So both conditions you can satisfy by this equation. Now from above condition we conclude that the velocity and thermal boundary layer superimpose each other. देखिए मैंने क्या मान के किया था, मैंने ये मान के किया था कि both are superimposed to each other. Clear? और वहाँ पर ये चीज़ मैंने प्रूफ की कि ये तभी हो सकता है सुपरिम्पोज टू ईच अदर जब प्रांटल नंबर की वैल्यू 1 हो. क्लियर? तो दोनों एक ही तरह का मैंने वहाँ से ये एज्यूम करके किया और यहाँ पर ये दिखाया कि ये प्रांटल नंबर 1 होगा तभी ये होगा, अदरवाइज ये कभी सुपरिम्पोज नहीं कर सकते. Superimpose each other so that the non-dimensionless quantity small u upon capital U and theta are identical for steady incompressible laminar flow. ध्यान से सुनिए, identical for steady incompressible and laminar flow for fluid with constant property and Prandtl number 1 over an isothermal flat plate. Clear? तो अब मैं जैसे आपको याद होगा कि वहाँ पर एक टेबल यूज़ की थी, उसी तरह मैं यहाँ पर भी एक टेबल यूज़ कर रहा हूँ. देखिए याद होगा ब्लेसियस की पावर सीरीज का जो टेबल था वो टेबल ये है. उस टेबल को यहाँ फिर से मैंने यूज़ किया. क्यों यूज़ किया, उसका रीज़न है. ये एक्सप्रेशन देखिए, 2 del 2 थीटा ओवर डेल ईटा स्क्वायर प्लस प्रांटल नंबर एफ ईटा डेल थीटा ओवर डेल ईटा. क्लियर? यहाँ पर थीटा को क्या मैंने लिखा था, थीटा इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल ईटा. क्लियर? सो एट ईटा इज इक्वल टू 0, एट ईटा इज इक्वल टू 0, that is del theta over del eta. del theta over del eta करेंगे तो del 2 f over del eta स्क्वायर हो जाएगा. this value is 0.332. this value is 0.332. this is for Prandtl number 1. this is for gas. clear? लेकिन सारे चीज हर बार फ्लूइड गैस हो ऐसा नहीं. क्लियर? वो मॉल्टन मेटल भी हो सकता है, वो क्या कहते हैं, कोई भी ऑयल हो सकता है, वो कोई भी और भी फ्लूइड कंसीडर कर सकते हैं. तो इसको जनरलाइज वे में अगर आप देखोगे, नाउ द इक्वेशन 1 इज सॉल्व फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रांटल नंबर्स एंड जनरली प्रांटल नंबर व्हेन द प्रांटल नंबर इज लाई इन बिटवीन 0.6 to 10. ध्यान रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ है. इफ प्रांटल नंबर लाई इन बिटवीन 0.6 to 10, तो आपका जो वैल्यू है 0.332, दिस वैल्यू if I am multiplied by this quantity Prandtl number to the power 1 by 3, this type of equation is known as the generic equation. That means these are the experimental truth कि आप जब इसमें देख रहे हैं वैल्यू की एग्जैक्टली नॉट 0.332, सपोज करो वो कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो गैसियस एग्जैक्ट गैस नहीं है, वो कोई भी रियल गैस है, या उस गैस में कोई भी इम्प्योरिटीज़ हैं, प्योर गैस नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका प्रांटल नंबर कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता. तो प्रांटल नंबर की वैल्यू 0.6 से अगर 10 के बीच में है तो उसमें वो 0.332 के बराबर नहीं आता है. यानी उसमें कुछ ना कुछ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो मल्टीप्लायर कितना है, प्रांटल नंबर टू द पावर 1 by 3. क्लियर? तो इफ आई एम मल्टीप्लाइड बाई प्रांटल नंबर टू द 1 by 3, तो हम कहेंगे कि एट ईटा इज इक्वल टू 0, डेल थीटा ओवर डेल ईटा इज इक्वल टू 0.332 प्रांटल नंबर टू द पावर 1 by 3. और अगर प्रांटल नंबर की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है, 0 की तरफ टेंड करने का मतलब है प्रांटल नंबर न्यू बाई अल्फा है. क्लियर? ये 0 की तरफ तभी ट्रेंड कर सकता है जब अल्फा, क्लियर, जब अल्फा आपका इनफाइनाइट हो.
यानी ये मॉल्टन मेटल्स अगर कंसीडर कर रहे हैं आप, मॉल्टन मेटल आप कंसीडर कर रहे हैं, यानी वहाँ पर थर्मल का इफेक्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो डेल थीटा ओवर डेल ईटा है, दिस शुड बी 0.564 प्रांटल नंबर टू द पावर 1/2। क्लियर? और अगर प्रांटल नंबर की वैल्यू इनफाइनाइट टेंड कर रही है, दैट मीन्स दिस इज द अल्फा, यानी वहाँ पर जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रही है, यानी ये ऑयल का केस है। ये आपका मॉल्टन मेटल का केस हो गया, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ये मॉल्टन मेटल का केस हुआ, दिस वन इज मॉल्टन मेटल केस। क्लियर? दिस वन इज मॉल्टन मेटल। क्लियर? और जो दूसरा है ये वाला, इसको मैं लिख रहा हूँ ऑयल। क्लियर? और ये जो कंसीडर किया जा रहा है, दिस इज फॉर गैस। क्लियर? तो ये मैंने तीनों अलग अलग आपको लिख दिए, ये गैस के लिए, ये मॉल्टन मेटल के लिए और ये ऑयल के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप इसको चूज कर सकते हैं। नाउ वाई द डेल थीटा अपॉन डेल ईटा। आप कहेंगे सर डेल थीटा और डेल ईटा की रिक्वायरमेंट क्या है? डेल थीटा और डेल ईटा की रिक्वायरमेंट देखिए कैसे आएगी। सी, डेल थीटा ओवर डेल ईटा एट ईटा इज इक्वल टू 0 फॉर फ्रंटल नंबर 0.6 एंड लेस देन 10 के लिए होगा गैस के लिए। डेल थीटा ओवर डेल ईटा को मैं डेल टी ओवर डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0, डेल टी ओवर डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0, टी एफ माइनस टी एस डेल थीटा ओवर डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से लिख देता हूँ, आप लोग बार बार इस चीज़ को समझ लीजिए। दिस इज टी माइनस, दिस इज टी माइनस टी एस अपॉन दिस वन इज टी एफ माइनस टी एस। ये चीज़ है, ये केस है। तो आप अगर देखेंगे डेल थीटा ओवर डेल वाई अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर, डेल थीटा ओवर डेल वाई अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, डेल वाई अगर मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, तो व्हाट इज दिस? दिस वन इज डेल टी ओवर डेल वाई अपॉन दिस वन इज टी एफ माइनस दिस इज टी एस। ठीक? तो डेल टी ओवर डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0, एट वाई इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली डेल थीटा ओवर डेल वाई भी हम किस पर कैलकुलेट करेंगे? वाई इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर? तो डेल टी ओवर डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0 इज टी एफ माइनस टी एस डेल थीटा ओवर डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0। अब डेल थीटा ओवर डेल वाई को आप चेन रूल लगा के डेल थीटा ओवर डेल ईटा, सॉरी दिस इज द डेल ईटा एट ईटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि वाई इज इक्वल टू 0 तो ईटा इज इक्वल टू 0, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ईटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ईटा इज इक्वल टू वाई बाई डेल होता है। तो अब वाई इज इक्वल टू 0 तो ईटा इज इक्वल टू 0। तो चेन रूल मैंने डेल थीटा ओवर डेल वाई में लगाया, डेल थीटा ओवर डेल ईटा मल्टीप्लाइड बाई डेल ईटा ओवर डेल वाई। तो डेल थीटा ओवर डेल ईटा एट ईटा इज इक्वल टू 0 फॉर प्रांटल नंबर ग्रेटर देन 0.6 एंड लेस देन 10 के लिए 0.332 प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3। तो दिस इज टी एफ माइनस टी एस एंड दिस इज मल्टीप्लाइड। एंड डेल ईटा ओवर डेल वाई, ईटा इज इक्वल टू, मैंने पहले लिख दिया है, फिर से लिख रहा हूँ, वाई अंडर रूट यू अपॉन न्यू एक्स। सो डेल ईटा ओवर डेल वाई इज इक्वल टू अंडर रूट यू अपॉन न्यू एक्स। तो अंडर रूट यू अपॉन दिस इज न्यू एक्स। क्लियर? ये चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये आप, मैंने आपसे बोला हुआ है कि आप कॉपी और पेन साथ में रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? तो आप यहाँ पर डेल टी ओवर डेल वाई अगर आपको ये वैल्यू मिल जाती है तो इसका बेनिफिट क्या होगा देखिए। अब इसका बेनिफिट देखिए क्या होगा। सो एट y इज इक्वल टू 0, एट y इज इक्वल टू 0, Q conduction is equal to Q convection. Q conduction और Q convection both are equal. So conductive heat at y is equal to 0. अब देखिए, आप, मैंने माइनस साइन यहाँ पर अप्लाई नहीं किया, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर ये सरफेस था, ये सरफेस टेम्परेचर है और ये फ्लूइड टेम्परेचर है। क्लियर? और आपने डायरेक्शन कंसीडर की है ये। क्लियर? हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर आपने कंसीडर किया है। ठीक? और कंडक्टिव हीट आप कहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं? y इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर? y इज इक्वल टू 0 पर। और कन्वेक्शन जो होता है, वो कन्वेक्शन की डायरेक्शन क्या है? वो ये है। कन्वेक्शन की डायरेक्शन क्या है? क्योंकि कन्वेक्शन में आपने क्या लिखा? दिस इज टी एफ माइनस टी एस। तो इसमें भी डायरेक्शन हमने ये कंसीडर किया है, दिस इज टी एफ माइनस टी एस। अगर मैं जनरली टी एस माइनस टी एफ लिखते हैं, अगर मैं टी एस माइनस टी एफ लिखूँ तो ये माइनस के हो जाएगा।
ये बात आप समझ रहे होंगे, ये बात आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं इसको ts माइनस टी एफ लिखूँ, ठीक, दोनों डायरेक्शन एक नहीं हो सकती। अगर ये इधर आ रहा है तो इसका मतलब ये इधर जा रहा होगा, तो टी एफ माइनस टी एफ लिखूंगा तो ये माइनस के होगा। तो मैंने यहाँ पर टी एफ माइनस टी एस लिया, इसलिए इसमें माइनस साइन हमने हटा दिया। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हीट ट्रांसफ़र जो कंसीडर किया जा रहा है फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू द हायर टेम्परेचर कंसीडर कर रहा हूँ, यानी मैंने ये डायरेक्शन कंसीडर की है कंडक्शन की। दिस इज़ द कंडक्शन, क्यू कंडक्शन, और ये डायरेक्शन हमने कंसीडर की है क्यू कन्वेक्शन की। क्लियर? एक सिस्टम में हीट आ रही है, दूसरी सिस्टम से हीट जा रही है, ऐसा। सो दिस वन इज के डी एक्स। डी एक्स क्यों कंसीडर किया? क्योंकि अगर आपको याद हो कि ये जो स्लोप ये कंसीडर किया था, ये डी एक्स था इस डायरेक्शन में। क्लियर? सो और ये आपका डी वाई था, तो मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो मैं इस डिस्टेंस को डी एक्स कंसिडर कर रहा हूँ। यूनिट विड्थ है तो डी एक्स इंटू वन, डेल टी ओवर डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो, एच एक्स डी एक्स टी एफ माइनस टी एस। क्लियर? तो यहाँ से आप जो डेल टी ओवर डेल वाई की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, दिस वन इज टी एफ माइनस टी एस मल्टीप्लाइड बाई 0.332 प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3 अंडर रूट यू अपॉन, दिस इज न्यू एक्स, अंडर रूट यू अपॉन न्यू एक्स इज इक्वल टू एच एक्स टी एफ माइनस टी एस, बिकॉज डी एक्स एंड डी एक्स विल बी कैंसिल आउट। सो एच एक्स, अब एच एक्स देखिए, टी एफ माइनस टी एस ऑल्सो कैंसिल आउट, सो एच एक्स इज 0.332 k बाई एक्स, रेनॉल्ड नंबर टू द पावर, रेनॉल्ड नंबर क्यों, इसको आप रेनॉल्ड नंबर बना लीजिए। रेनॉल्ड नंबर आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है। दिस इज रेनॉल्ड नंबर, मैं लिख देता हूँ, रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू, दिस इज यू एक्स अपॉन न्यू। क्लियर? तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर होगा तो एक x यहाँ पर आ जाएगा, तो दिस इज द k अपॉन एक्स एंड दिस इज द यू एक्स अपॉन न्यू टू द पावर 1/2 एंड प्रांटल नंबर टू द पावर 1/2। दिस इज द लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब देखिए इस एच एक्स को अगर x से मल्टीप्लाई कर दे और k से, तो ये पर्टिकुलर टर्म डायमेंशनलेस क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नसेल्ट नंबर है। यानी यहाँ पर जो L रेफरेंस है वो x है, L रेफरेंस जो था वो x है, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है जहाँ पर आप हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो NUX इज इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड नंबर x टू द पावर 1/2 एंड प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3। But this formula is applicable only and only for the incompressible fluid, steady state and laminar flow over a flat plate, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट कर लीजिए, तो एवरेज वैल्यू 0 to L HX DX करेंगे तो दिस शुड बी 2 times ऑफ HL। ये आप करके जरूर देख लीजिएगा। अब जब आपको पूरी प्लेट से हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना निकालना होगा, तो हमेशा आप एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कंसीडर करेंगे, ना कि लोकल वैल्यू। Hx is a local convective heat transfer coefficient and H bar is known as the average convective heat transfer coefficient। H bar हमेशा जब हीट ट्रांसफर का रेट कैलकुलेट करेंगे, न्यूटन्स कूलिंग लॉ लगाएंगे, वहां पर हमेशा H bar यूज किया जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा और इसमें टॉपिक था, वो ये कि थर्मल बाउंड्री लेयर कितनी होगी। तो वो प्रांटल ने जो सजेस्ट किया, वो मैं प्रूफ यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ पर लेमिनार फ्लो के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। प्रांटल का सजेशन था कि अगर डेल अपॉन डेल टी का रेशियो देखिए, तो आपने देखा था कि डेल वाला जो टर्म था, यानी जो डेल के टर्म्स थे, उसमें आप 0.332 कंसीडर करते हैं, ठीक। लेकिन जब डेल टी का आता है तो 0.332 प्रांटल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में आता है, प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3 के मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ तो ये प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3 से चेंज होगा, यानी डेल टी इज इक्वल टू डेल अपॉन प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3। बट दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर प्रांटल नंबर ग्रेटर देन 0.6, 0.6 एंड लेस देन 10। ये प्रांटल नंबर 0.6 और 10 से अगर बिलो होगा, तब ये डेल टी को हम डेल अपॉन प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो ये आपका थ्योरी था। डेल अपॉन डेल टी मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर लो प्रांटल नंबर। जो चीज़ मैंने वहाँ पर लिखी थी वही चीज़ फॉर वेरी लो प्रांटल नंबर्स ऑयल के लिए, और फॉर वेरी लो प्रांटल नंबर्स अगर आप कंसीडर कर रहे हैं मॉल्टन मेटल, तो डेल अपॉन डेल टी प्रांटल नंबर टू द पावर 1/2 होगा। ये आप प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने लिखा था वही चीज़ मैंने यहाँ पर आगे बताई है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट दिस लेक्चर। So we will meet in this next lecture further.